دې دا و د دې رور دی زبیر هغه او یو مور او یو د دې خور دې هغه ویډیو کې چې مو کتو نو یو تور کلر ګاډی نه دیر ووتو او زما لور هم ورسره وه چې څنګه د تاڼې سره خوا کې څنګه چې زما لور ګاډی نه راووتو نو هلته هغه زهیب خور چې کوم ده هغې بټوې نه یو پرس غوندې و نو هغې نه یو پسټل راویستلو. तो ये वर्दी वाला मेरे पीछे भागता हुआ आया और कहता है बंद करो ये गेट, ये औरत तुमसे बाहर ना निकले. जिस तरह वो अजीब किस्म का कोई माहौल था. वो मर्द मुझे हाथ डाल रहे थे वहाँ पे अंदर, थाने के अंदर पुलिस वाले सारे के सारे. हाँ, और मैं भागते हुए गेट से निकली. ना ना तुम लोग आओ कि थाने जाए कि तुम लोगों से एक FIR पर कटवा लेना. अगर तुम लोगों ने उनके खिलाफ बयान देना तो दे दो ना थाने में. हाँ, ये बयान देने से हमें खतरा है अभी. हम क्या करें, 4 बच्चे हैं हमारे पास. खतरा तो 115 पे कॉल करना, पुलिस इधर आएगी, तेरी FIR लिख के चली जाएगी. सॉरी चपलीमान उनको बिचारे इतना ना हमारे उल्टा हमें पकड़ा दी. नहीं ऐसा नहीं होता, मगर गलती पे आपने, आप खैर ऑनलाइन घर से बाहर FIR भी करती तो अभी भी 15 पे कॉल करके बयान दे सकती. नहीं पहुंचती आप आके बस आपको लोग बता के. हाँ बच्ची मार करे थी और तवले रहुआ थी कोरना हमारे बच्चों जोड़ अल्लू ते जगड़ी दियो जम जगड़ी मार पे तो गोरी चागा वही निकल पैसा की तरफ दर्द दे बमु गोरी से नहीं है हां उनके से भी विश्व कोई पैदा मन्ना सो शो यो चिकन सी की में उनका था अब आगे से कम दरगली करना नहीं शिवा मालिक का अखवा दरही. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د آشناغرۍ په حدودو کې یو ډېره ناخوشګواره واقعه شوې وه چې یو ځوانه جینۍ چې کومه په کم عمري کې واده شوی او هغه ډېره نیازبینه هم وه. د پلار د وینا مطابق هغه د خپل خاوند په کور کې وه، په جنګ جګړې به کېدې، وال ټکول به یې کول. خو پرون چې کوم ماښام ماسخوتن ټایم و، په دغه ټایم کې چې دی هغه ووجله او مړه یې کړله. په دې باره کې د دې والد صاحب سره لږ خبرې کوو چې یاره تاسو څنګه پته ولګېدله، او بیا به د هغې خور سره او ورور سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا واقع لږ تفصیل ووایه چې دا څه چل و، تاسو څنګه پته ولګېده چې یاره دا وفات شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته چې سهار تاڼې نه کال وشو او زه چې څنګه تاڼې ته لاړم نو بس زما لور چې کوم دی نو هغه یو ایمبولنس کې چې کوم دی نو مړ پروت و. بیا ما ته SHO ویلو چې ته دننه راشه، تا ته یو حقیقت تا ته ښیم. زه چې دننه لاړم نو ما ته هغې یو ویډیو ښولو. نو هغه ویډیو کې چې کوم دی نو د زهیب چې کوم دی نو دې دا و د دې رور دی زبیر هغه او یو مور او یو د دې خور دې هغه ویډیو کې چې مو کتو نو یو تور کلر ګاډی نه دیر ووتو او زما لور هم ورسره وه چې څنګه د تاڼې سره خوا کې څنګه چې زما لور ګاډی نه راووتو نو هلته هغه زهیب خور چې کوم ده هغې بټوې نه یو پرس غوندې و نو هغې نه یو پسټل راویستلو او زهیب ته یې ورکړو. نو هغې ته وایي چې اوله یې مړې که اوله. نو هغې چې کوم دی نو زما لور باندې فایر وکړو او چې فایرینګ وکړو نو بیا هغه تمانچه چې کوم دی نو هغه بل رور له یې ورکړو. نو هغه تمانچه بوتلو او بس دا دومره CCTV فوټیج کې چې ما وکتو نو بیا مې SHO صاحب ته ویلو مې دا چې کوم دی نو دا خو ملزمان دي او بس زه خو دا ټول پېژنم. او هغوی بیا وایي چې بس ټیک ده دا کسان مونږ چې کوم دي نو ونیولي دي او دا کسان دي. نو بس هغې نه پس بیا ما نه FIR واغشتو او بیا لور ما ته حواله کړو. دا څو کسان وو؟ دا خو 4 کسان دي او 4 کسان نو یو زهیب او یو زبیر او یو د زبیر مور او یو خور انم نوم دی. داسې ویل کېږي چې دا کوم زویب دیدي نو دا ستاسو سره رشته دار هم کېدو، ستاسو خینې چې کوم سالي ده د هغې زوی و، لکه تاسو رشته کړې وه. او دا زما چې کوم دی نو د خینې زوی و. نو زما کور والا چې کوم دی نو هغوی دا غوښتو چې یاره دا زما خور چې دی دا زما خور ده او بس دې زوی ته به زه د خپل لور به یې ورکړم او باقي دی به هم بار بار به راتلو رشتې لپاره. نو دې له بیا مونږ د جینۍ چې کوم دی خپل لور نه دې له ورکړو. تاسو ته مخکې نه پته نه وه چې یاره دا څنګه قسم خلک دي، یاره لکه دا هلک بدعمله دی
او سیټ نه دی، نو آیا بیا دوی ته ماشوم ورکول لکه دا داسې نه و چې یاره یا نشهي دی یا بدعمله دی، نو داسې ځي کې خلک خپل لور یا خور دا خو نه ورکوي، لکه تاسو دا پته نه وه مخکې؟ یاره ما ته خو دومره پته وه چې څه کار روزګار به م دومره خاص نه کولو، او ما چې کوم دی نو ما خپل کور والا ته م وویلو لکه د ورور دی دا هم د دې مخالفت کولو چې یاره دې له نه ورکو، نو بس هغې مور چې کوم دی نو هغې به دا خبره کولو چې بس یو ځل چې واده وشي نو دا به بیا سیټ شي، بیا به خامخا به دې باندې به ذمېواریانې به راځي، نو دا به کار مار به کوي، نو باقي چې کوم دی نو تاسو ورته رشته وکړئ نو دا به هر څه به سیټ شي، نو بس موږ ورته چې کوم دی نو بیا دا رشته ورسره وکړو. کتونکو موږ سره چې کومه دا ماشومه قتل کړې شوې ده د هغې را سره خور ناسته ده. कल शाम को मुझे बहन ने जब कॉल की है ना, तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी. वो मुझे कहती कि यार मैं हूँ और मेरे साथ 4 बच्चे हैं. तो मैंने उनके कहा आपके साथ 4 बच्चे कैसे? उसने कहा यार मेरे साथ मेरी देवर की बीवी जो है वो भी आई है, मतलब इस लड़के की जो बड़े भाई की बीवी है ना. तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कह रहे यार हमें मार रहे और हमें कत्ल कर रहे, मुझे मौत का ख़तरा है, तो हमें जगह बताओ कि हम आ जाए आपके घर. तो मैंने इससे कहा आप हमारे घर ना, आप ऐसा करें आप थाने फ़ौरन अपना आप पहुँचाएँ. तो वो मुझे ये कह रही थी कि यार मैं थाने नहीं जा सकती, वहाँ हमारी नहीं सुनते. फिर मैंने उसको ये भी कहा कि यार आप 15 पे कॉल करें, पर वो कह रही थी नहीं मुझे जगह बताओ मैं आती हूँ, आप मेरे साथ जाओ. फिर मैंने उसको कहा आपके साथ और अभी कौन कौन है? उसने मुझे कहा ये जो मेरे साथ आई है ना देवर की भी, आप इनसे बात करिए, भी मेरे साथ है. उसने भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मिन्नत करने लगी कि यार हम लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा तंग है और हम दोनों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो हमें बुलाओ. फिर जब हमने उसे अपना घर का एड्रेस दिया, वो जब वहाँ पर आ गए, हम उनके साथ जब कृष्णगिरी थाने गए, तो कृष्णगिरी थाने के अंदर वो नहीं जा रहे. तो कहते हम बाहर खड़े होते हैं, आप पहले अंदर जाके पूछो कि अगर वो हमें बुलाते हैं और मारते नहीं या बंद नहीं करते तो फिर हम अंदर आते. वो इस तरह डर रहे थे जैसे कि बस वो थाने वाले भी बिल्कुल इनको अभी कत्ल कर देंगे. तो मैंने उसको कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस तो ज़ाहिर बात है हमारी सेफ्टी के लिए है, फिर भी आपकी उसके लिए जो आपके दिल में बात है तो मैं पहले चली जाती हूँ. तो मैं और मेरी एक और बहन है, हम दोनों जब थाने के अंदर गए तो उसकी वो बात सच निकल आई. जैसे ही हम घुसे हैं तो अंदर पहले तो वर्दी में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ सिविल कपड़ों में थे सारे. और जो बंदा बैठा हुआ था तो मैंने उसको कहा यार पुलिस वाला किधर है? तो कहते क्यों हम आपको नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल सिविल कपड़ों में एक बंदा बैठा, तो अभी चावलों के आगे बैठा, तो उसके आगे खाट पाट पड़ते जिसमें चावल पड़े हुए थे. एक फैमिली माहौल था, एक बैठक सी बनी हुई थी. फिर मैंने कहा यार इस तरह की बात है कि मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसकी जान को ख़तरा है, उसको उसका शौहर मारना चाहता है वो, और उसकी देवरानी वो FIR करवाना चाहते हैं. तो ये मुझे हंस हंस के कहते तो अच्छा ठीक है ले आओ, ये कौन सी बड़ी बात है. तो फिर जब मैं वापस वहाँ से निकलने लगी तो एक बंदा था वर्दी में जिसने मुझे रोक लिया. तो मुझे कहते कि तुम कौन हो और किस लिए आई हो? मैंने कहा मैं FIR करवाने आए हैं और मेरी बहन उसको उसका शौहर मारना चाहता है. फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये वो जुहेब वाला केस तो नहीं है? उसको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन थी. तो कहते हैं अच्छा जुहेब वाला केस है, लाइबा का कह रही हो? तो पहले तो मैंने कहा कि इसको कैसे पता लग गया, पर फिर वो मुझे कहते अच्छा चलो आप मेरे साथ अंदर आओ. तो जब वो मुझे अंदर ले गया तो वो पहला बंदा उसको कहते क्यों हम पर भरोसा नहीं है क्या? तो ये मुझे कहते बैठो बैठो तुम बैठो. तो इसमें एकदम से जुहेब की माँ थाने के अंदर ही थी कि पता नहीं बाहर से, मगर एकदम से वो भी आ गया और जुहेब भी आ गया और पुलिस वाले के साथ कह के लगा के हंसने लगे ना, वो भी हंसने लगे. तो मुझे कहते बैठो बैठो अभी तो बड़ी बात है. पुलिस स्टेशन था ये कृष्णगिरी वाला थाना था. अच्छा. और वो मुझे कहते बैठो बैठो. तो मैं एकदम घबरा गई. तो ये औरत एकदम से मुझे पुलिस वालों के सामने ही मुझे इस तरह धक्का दे के कही तुम तो बैठो, तुम किधर जा रही हो? तो मैं डर से उठी और जो मेरी जो दूसरी सिस्टर थी जिनकी गोद में बच्चा भी था उनको भी इन्होंने एकदम से वहाँ रोक लिया. तो मैं भागते हुए गेट की तरफ भागी हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था उस टाइम पे, और जो था वो भी हंस रहा था उस औरत के साथ. तो ये वर्दी वाला मेरे पीछे भागता हुआ आया और कहता है बंद करो ये गेट, ये औरत तुमसे बाहर ना निकले. जिस तरह वो अजीब किस्म का कोई माहौल था. वो मर्द मुझे हाथ डाल रहे थे वहाँ पे अंदर थाने के अंदर, पुलिस वाले सारे के सारे. हाँ, और मैं भागते हुए गेट से निकली, उस बंदे को धिक्का मारकर. जब मैं निकली उसके बाद भी इनकी आंखों में हया नहीं थी. सारे मर्द पुलिस वाले जो वर्दी में गेटों पे मौजूद थे वो वाले मेरे पीछे भागते हुए बाहर रोड पर आए. मैं रक्शे में बैठी, उन्होंने रक्षा रोका, मैं रक्शे से उतर के बाहर की तरफ भागी हूँ. तो जुबैर भी था, जुबैर बाहर मेरे पीछे भागने लगा. फिर आधे रास्ते में जुबैर ने मुझे पकड़ पकड़ के सर पर गुजारे किए मेरे. फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, तब तक इनको बाहर का शायद माहौल का अंदाज़ा हुआ होगा, ये उन लड़कियों को लेके वहाँ से निकल चुका था. तो मैंने सोचा भाई तो जाहिर बात, हाँ भाई हमारे साथ इसी ने तो हमें गाड़ी में लेकर गया मेरी बहन को और उसकी देवरानी को पर्चा कटवाने के लिए. ये कौन सा भाई आपका? ये वाले भाई मेरे. अच्छा. फिर उसके बाद हम वहाँ से इनको कॉल किए, ये कहते यार चलो गुलबहार थाने की तरफ आ जाते. जब हम गुलबहार थाने के अंदर, इन्होंने हमें वहाँ से छोड़ा. फिर जब हम गुलबहार थाने के अंदर गए तो वो तो उनकी हदूद नहीं थी, वो हमारी FIR नहीं ले रहे थे. फिर भी हमने उनको बहुत मिन्नतदारी की. हमने कहा खैर इसकी जान को ख़तरा है, मतलब हम यही रोते रहे. रोजनामचा रिपोर्ट, रोजनामचा वहाँ जी उन्होंने हमसे रोजनामचा लिया. फिर
बहुत ज़्यादा, मतलब हम उनको कह रहे थे, ये भी हमने उनको कहा यार हम थाने से नहीं निकलते, हमें ख़तरा है, मगर कहीं ना कहीं से वो कालों पे ऐसे मुलविस ग्रोही था, वो हमें यही कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, हम हैं ना। तो रोजनामचे के बाद पुलिस वाले तो आपके साथ नहीं गए? गए हैं ना पुलिस वालों ने, फिर हमें वो गुलबाग पुलिस? नहीं, वो हमें ऐसे नहीं गए, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठा कर और हमें ये दलजाक रोड नहर पर उतार दिया। गुलबाग वाले? हाँ, मतलब कार्रवाई नहीं की हमारी किसी उस पर भी। फिर जब उन्होंने हमें वहाँ पर उतार दिया, हम एक रक्शे में बैठे, तो मेरी बहन ने कहा कि यार ख़तरा है और ये लोग मुझे गोलियां मार देंगे, वो मुसलसल यही कह रही थी। फिर मैंने उसको कहा चलो उतरो रक्शे से, टैक्सी करवाते हैं। हम टैक्सी करवा के अब अपने घर की तरफ जा रहे थे, हमारे दिल में तो चलो रोजनामचा हो चुका है तो थोड़ी बहुत सेफ्टी हमें मिल जाएगी। मगर जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे वो पुलिस वाले, वही पुलिस वाले जो अशनगरी में मौजूद थे उससे पहले, वो वाले पुलिस वाले थे, साथ जुहेब था, जुबैर था, और ये लोग मिल के हमें आवाज़ें मार के कहते पकड़ो, पश्तो में कह रहे थे बस राला उससे उला, ऐसी आवाज़ें। मैंने गाड़ी वाले को बोला गाड़ी दौड़ाओ। पुलिस वालों के सामने? हाँ, पुलिस वालों के सामने, खारा दहशतगर्द। इन्होंने तो बाद में भी उसको थाने के सामने ही मारा है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हमने जब टैक्सी दौड़ाई थी, हमारे पीछे बाइकों पे लग गए, और जब ये हमारे पीछे बाइकों पे लग गए तो हम वो नहर क्रॉस करके आगे मजबूरन वो टैक्सी वाले को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि इसके जो बड़ा भाई है जुबैर, वो अपनी बाइक गाड़ी के बिल्कुल सामने ले आया, वहाँ से उतर के उसने मुझे पहले तमांचा सर पे मारना शुरू कर दिया, फिर लाइबा के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ शुरू कर, फिर पीछे से जुहेब आ गया, उनके साथ पुलिस वाले और लोग भी थे, और इसने उनको कहा कि यार मारो इसको। इस दौरान में मुझे मजबूरन भागना पड़ा, अगर मैं ना भागती ये लोग मुझे भी मार देते। अच्छा, बहन के साथ आप थी, आप वहाँ से हाँ, मैं वहाँ से जान बचा के भाग के किसी के गेट के पीछे छुप गई। आपके पीछे तो वो नहीं आए रहे थे ना, मगर उस वक्त तो वो लाइबा के साथ वो गए थे, तो मुझे मारा, मैंने उससे अपना आप छुड़ा, जुहेब और जुबैर दोनों लाइबा पे गुजारे करने शुरू कर दिए। भाई भी आपके साथ? नहीं, ये नहीं थे हमारे साथ, ये तो वहाँ गुलबार थाने के बाहर अपने घर की तरफ चले गए। उनको कॉल आई गाड़ी में जा रहे थे तो भाई नहीं था? नहीं, ये टैक्सी थी, ये गाड़ी हम लोगों ने टैक्सी करवाई थी। ये वहाँ गुलबार थाने से घर की तरफ इसलिए गए क्योंकि अशनगरी थाने वाले जो थे वो बगैर किसी उसके हमारे उस वाले घर में जाके और औरतों को इन्होंने हाथ डाल दिया, तो मेरे भाई को मजबूरन गुलबार थाने के बाहर हमें छोड़ के अपने घर की तरफ जाना पड़ा। मतलब इन्होंने ऐसा किया कि वहाँ से हमें घेर के मारना शुरू कर दिया और घर में हमारी औरतों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। नहीं, जब आप वहाँ से जान बचा के घर की तरफ नहीं, आ इस तरह गए? नहीं हुआ। फिर वहाँ से जब मैं जान बचा के छुप के दरबार के पीछे बैठी रही, आधा घंटा इसी उसमें रही कि मैं निकलूँ, ये लोग मुझे मार न दें, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि इसको मारो इसको मारो। उसने मेरी बहन को उस टाइम गुजारे करके पुलिस के साथ मिल के उठाया, क्योंकि अब तो हमारी जो हिफाजत करने वाले हमें पता लगे वही हमें मार रहे हैं इनके साथ तो मिल के। आपको फिर कब मैं पता वहाँ चला? पीछे वो जो नहर चलते चलते वो नहर से पीछे वो जो दलजाक रोड वाली रास्ते है उस पर मैं निकल गई। मैंने दोबारा अपने भाई को कॉल मिलाई, मैंने कहा भाई वो लोग पुलिस के साथ मिलकर मुझसे लाइबा को और वो जो उसकी देवरानी है ना सोनम, उसको ले गए हैं। तो मेरे भाई ने बोला अच्छा। फिर बाकी इनको वहाँ से कॉल आई और मैंने सोचा मेरे पीछे आओ, मेरी भी जान को खतरा है, वो लोग मुझे भी मार रहे हैं। ये वहाँ से इसने मुझे भी उठाया, फिर मेरे पीछे गाड़ी में ऐसे भाई ने आपको कहा कि उनको मार दिया? हाँ, मेरे भाई ने मुझे। तो वो जो दूसरी लड़की थी, मैंने बोला अभी तो मेरे साथ वो दूसरी लड़की का फिर हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई, मगर मेरे भाई ने मुझे बताया कि यार उन्होंने उसको थाने के बाहर ही मार दिया। बाकी तो अशनगरी थाने के बाहर पुलिस वालों के सामने। फिर मेरी जो छोटी बहन थी, नहीं, जब आप गाड़ी में बैठे ये टैक्सी में, तो टैक्सी को कहाँ पर? मेरे से वहाँ से ले गए थे ना मार मार के पुलिस। अच्छा, टैक्सी में ले गई? टैक्सी में नहीं लेकर गए, मुझे और उसको इन्होंने टैक्सी से उतार के हम पे गुजारे शुरू करनी। और टैक्सी में उसको आपसे अपने साथ ले गए? वो मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ में उसको लेकर गए, मगर वो लोग उसको फिर अपने साथ वहाँ से ले गए। साथ में था कि नहीं? होता ये तो नहीं था ना, ये तो अपने घर में अपनी औरतों को पुलिस वालों से बचाने के लिए गया, क्योंकि पुलिस वाले हमारी औरतों के कपड़े फाड़ रहे थे। यहाँ तक बात आ गई थी, हमारे घर में औरतों के साथ कमरों में घुस गए थे। तो ये जो बहन को गोली मारी तो वो कौन सी जगह थी? अशनगरी थाने के बिल्कुल सामने कैमरों में रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, थाने के कैमरों में रिकॉर्डिंग आई हुई है, और वही पुलिस वाले जो हमारे घर में औरतों पर तशद्दुद कर रहे थे उसमें से एक ने मेरी बहन को नंबर दिया। तशद्दुद ये कौन से घर में? उसने कॉल करके कहे कि देख लो हमारा जोर, तुम लोग तो हमारे पुलिस ने कहा ना, ये कौन से अशनगरी के पुलिस ने कहा देख लो हमारा जोर। तो ये आपका घर कौन से? अच्छा, आपका घर कौन से एरिया में? ये सिटी टाउन में? ये सिटी टाउन में। तो वहाँ पर अशनगरी की पुलिस कैसे आए? वहाँ पे सिर्फ अशनगरी की पुलिस नहीं, अशनगरी की पुलिस को वहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था। अशनगरी की पुलिस अपने साथ बाड़ीपुरे वाली पुलिस को भी लेकर आई थी। अच्छा, और ये सारे मिल के हमारे दरवाजे तोड़ रहे थे। अच्छा, तो अंदर आए हैं, कोई लेडीज पुलिस साथ? लेडीज पुलिस नहीं थी? नहीं, उनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, उनके साथ सुखी आंटी थी, यही जो इन्होंने ये कार्रवाई की है, जो अपने बेटे के साथ मिलके मेरी बहन को मार, जिनके साथ मेरी आंटी थी, उसके साथ उसकी बेटी थी, और ये बदमाशियां भी करते। इनके पास अपने जाती तमांचे उस वक्त भी मौजूद थे जिस वक्त में ये पुलिस के साथ आए थे। तो उन्होंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई का FIR काटा था? क्यों आपको? तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो खुद FIR के पीछे जा रहे थे ना, हम तो खुद वहाँ पे रहम की भीख मांगने जा रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो पुलिस वालों ने आपको कॉल की है, अशनगरी पुलिस वालों ने? हाँ, कि देख ली हमारा जोर, ये हमारा जोर है।
हाँ, कि हमने आपकी हाँ, बहन जहाँ को पे एक मार दिया। थाने में बैठ के बगैर वर्दी के, तो पुलिस को पहले इजाज़त ही नहीं है थानों में बैठने की, फिर ये बगैर वर्दियों के बनियानों में और कपड़ों में बैठ के, शलवार कमीज़ों में बैठ के खाने खा रहे हो हाट पाट में, और उसकी माँ और उसका वही जिसके खिलाफ हम FIR करने जाएं, और हम ये पुलिस के आगे अपनी रहम कर, मतलब हम जैसे लोग फिर कहाँ जाएंगे? जब हम वहाँ पे अपने वो जो हमारी हिफाजत के लिए बैठे, हम उनके पास जाएं और वही आगे खाने खा रहे हो, और जिनके खिलाफ हम गए वो उनके साथ बैठ के हमें वहीं पे बिठा दिए। मुझे किस कानून आपकी में रोका है इसने? आपकी बहन जो घर से निकली और उनके साथ दूसरी लड़की भी थी, जी जी उनकी जो देवर है जी उनकी जी। बीवी थी, तो आपकी बहन ने क्या कहा कि क्यों हम घर से निकले कह और रहे हम लोगों हम को पे मारते कौन सा पीटते, हम जुल्म लोग करें? ये लोग इनको हमारी तरफ नहीं छोड़ते थे, उस लड़की को उसके माँ बाप के घर की तरफ भी नहीं छोड़ते थे, मतलब ये लोग हमारे साथ जुल्म और ज्यादतियाँ करते थे, इसी तरह की करते, उसको मार पीट करते, सब बुरा बर्ताव करते थे, उसको बहुत हद तक टॉर्चर करते थे ये लोग। आपकी और बहनें और भाई भी हैं, जी जी। तो अब घर में उनका क्या सूरत हाल है? बस हम सबसे ज़्यादा तो गिला पुलिस वालों से करते हैं, क्योंकि जब बंदे पे कोई बुरा वक्त है तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, और जब एक औरत ज़ात थाने में FIR के लिए जाए और जिसके खिलाफ जाए वो बंदा खड़ा होकर उसको कहे सब्र करो, अभी हम तुम्हारे साथ देखते हैं, और पुलिस वाले हंस रहे हैं और चावल खा रहे हों, तो ये तो फिर कोई अजीब सा किस्म का फिर लोग किधर जाएंगे? और फिर वही पुलिस वाले मेरी बहन को इन दोनों के साथ मिलकर ले गए और अपने थाने के बाहर इन्होंने गोली موږ سره د دوی رور ناس دی اغین پولیس لتلی دي تانو ته ریپورت د پاتلې هغه سره خبره کوو چې یاره دا وقوع باره کې چې دی تاسو لګ ډیټیل دی عوام ته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب بھائی دا راته وایي چې کومه دا مسله وا او دا کومه رااله دې کې تاسو په خپل سترګو څه ولیدل او بیا چې کله تاسو خوراکي وفات شوله نو تاسو ته چا وویل چې یاره دا وویشتل شو؟ ये इस तरह हुआ है कि मेरी जो बड़ी बहन बैठी थी अभी, इसको कॉल आई थी ना मेरी बहन लाइबा की, तो ये बहुत डरी परेशान थी और ये कह रही थी कि मुझे ज़ुहैब जो है वो मार रहा है, तो मुझे बचाओ। तो बस इसके साथ मेरी घर से निकली थी, घर से निकल चुकी हुई थी, कह रही थी मैं घर से निकली हुई हूँ, बाहर रोड पे और परेशान थी, लेकिन कहती है मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, इसने बाहर से कॉन्टैक्ट किए मेरी को। तो फिर उसके बाद जो है ये बोल रही थी कि तुम्हारे साथ कौन है? कहती मेरे साथ 4 बच्चे हैं और मेरे साथ जो इसका खावन का जो वो है ना भाई की बीवी जो है, देवर की बीवी जो है, वो भी इसके साथ थी। तो मेरी ने कहा चलो तुम उससे बात करवाओ, फिर उससे बात की है, वो भी कह रही थी कि मुझे जो है बहुत मारता है और बहुत जुल्म कर रहा है और हमें बस घर में ऐसे बंद किया हुआ है जैसे बस जेल में बंद किया होता है, और हमें मौका मिले हम निकले हैं अभी और हमें बचाओ, हमें ये लोग अभी देखेंगे तो मार देंगे। तो बस मेरी ने कहा तुम ऐसे करो थाने जाओ डायरेक्ट। वजह क्या थी मारने की? ये वजह तो नहीं, ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर ज़्यादतियात करते हैं, मारते रहते हैं इनको। तो फिर इस तरह हुआ है कि मेरी बहन जो है उसने कहा तुम 15 पे कॉल करो या थाने चली जाओ, तो ये कहती है नहीं थाने नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो ये अनम का नाम ले रही थी, ये इसकी वो है सास है? नहीं सास नहीं है, ये अनम अरशद जो है ये इसकी क्या कहते हैं उसको, मतलब जिसने मारा ये जिसने मारा है ना इसको ज़ुहैब की बहन है। अच्छा अच्छा। कह रहे उसके सारे जो पुलिस वाले जानने वाले हैं उसने सारे यार बनाए हुए और कोई भी हमारी नहीं सुनेगा, अगर हम जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि तुम जिस भी थाने चली जाओ तुम्हें हम मतलब हवाले कर देंगे, दोबारा ज़ुहैब के हवाले कर देंगे। मतलब ये कि पुलिस भी आपका रिपोर्ट नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, जिधर जाते हो चले जाओ। तो हमने क्या इस तरह करते हैं कि फिर तुम्हारे थाने जो तुम्हारे साथ लगता है तुम उसमें नहीं जाते, अपने थाने चले जाते हैं बाड़ीपुरे में। हम बाड़ीपुरे में चले गए, जब बाड़ीपुरे में हम चले गए तो हम तकरीबन वहाँ पे 10 मिनट ठहरे हैं, हमने जो है उधर वीडियो भी बनाई जब हमारी रिपोर्ट नहीं ले रहे थे कि हमारी रिपोर्ट नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग थाने में आपने वीडियो बनाई है? हाँ हमने एक वीडियो बनाई है छुप के। अच्छा वो है वो वीडियो मेरे पास है। अच्छा हाँ, और मेरी सिस्टर ने बनाई है वीडियो पड़ी हुई है, ये रिपोर्ट नहीं ले रहे थे, फिर हम वहाँ से निकल गए हैं। हमने बहुत बोला कि वहाँ पे हम नहीं जा सकते, वो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उनके साथ नहीं पावरफुल लोग है कि पाड़ीपुरे में भी, अशनगरी में भी, गुलबार में भी। वो तो बाड़ीपुरे वाले कह रहे थे कि आप लोगों का केस ऑलरेडी हुआ है वहाँ पे अशनगरी में और आप लोग जाओ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमने कहा चलो चले जाते हैं। जब हम गए हैं अशनगरी में हम खड़े हो गए हैं तो हमने नोटिस किया कि ज़ुहैब जो है वो तो थाने के बाहर ही खड़ा है। अच्छा। और एक ब्लैक छोटी सी 660 गाड़ी जो होती है उसमें कोई एन बॉक्स टाइप का, एन बॉक्स था मेरे को, उसमें जो है बाहर खड़ा था। तो मुझे मेरे साथ तो लाइबा थी, तो उसने देख लिया, कहती है कि ये ज़ुहैब की गाड़ी है, ज़ुहैब लोग तो खड़े हैं। वो थाने से साइड पे थोड़ा सामने ही खड़े थे जिस जगह में इसको मार दिया बाद में। तो फिर मैं थाने के बिल्कुल सामने आगे जाके खड़ा हो गई हूँ, तो ये डर रही थी, कहती है मैं नहीं उतर के जाती हूँ थाने में। तो ये जो मेरी बहन ने अभी इंटरव्यू दिया है, ये और इससे एक दूसरी छोटी बहन है इससे, वो दोनों थाने में अंदर चले गए हैं। जब थाने में अंदर चले गए हैं तो उनको जो है कहा है कि अच्छा सही है, उन्होंने बताया कैसे हम छोटी बहनों को लेके आए हैं, छोटी बहन को वो FIR कटवाती है, बताया ऐसे से वाक़या। उन्होंने कहा ले आओ ना, तो उसके साथ हंस के कहते ले आओ, मस्त। ये दोबारा गेट तक निकली तो इसको रोक दिए।
जब इसको रोक वापस जाने के लिए रोक दिए, इसको रोक दिए। इतने में बाहर से वो गाड़ी में जो ज़ुहैब बैठा हुआ था उस गाड़ी से एंटी लोग उतरे हैं और कहीं अंदर गए हैं और इसको रोक दिए कि बस ये लोग तो मौके पे पहुंच गए हैं। अंदर से पुलिस वाले ने कहीं इतला दिया कि जी वो लोग आ गए हैं। वही बात थी कि इनको उसके हवाले कर रहे थे। बाहर जब मैंने ये सब सीन देखा है मैं तो बाहर से निकल गया, क्योंकि वो लोग लाइबा लोग जो है वो चीखें मारने लगे, रो रहे थे। और वो जो दूसरी लड़की थी वो भी चीखें मार रही थी, कहती है कि ये मेरे भाई भी खड़े हैं वहाँ पे, उसके भाई भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उसके भाई भी खड़े थे। सही है। और वो डर गई है, वो कहती है बस मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। हाँ, तो बस मैंने इनको वहाँ से निकाल दिए। और फिर मैं अपनी बहनों को कॉल करता तो मेरी बहनों का नंबर नहीं मिलता, कोई 1 घंटे तक इनका नंबर नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरी जो है ये जो जिसने इंटरव्यू दिया सिद्रा, ये वहाँ से किसी तरीके से निकल के भाग गई है। हाँ, लेकिन इसको काफ़ी गुजारे भी लगी हुई थी। ज़ुबैर जो है वो इसके पीछे निकला है और जो ज़ुहैब था वो वहाँ खड़ा था और एंटी अंदर चली गई थी। एंटी ने मेरी वो जो एक दूसरी बहन थी उसकी गोद में 1.5 महीने का बच्चा था उसको भी मारा है, मेरी बहन को भी मारा है और उधर उनको पकड़ लिया था, नहीं छोड़ रहे थे। तो जबकि ये जो हमारा हुसैन चौक वाला घर है ये हमने चेंज किया था, ये आंटी को नहीं था मालूम। तो आंटी ने इस तरह किया कि वो जिस बहन को रोका हुआ था थाने में उसके साथ शनगरी वाली पुलिस को लेके तो हमारे उस वाले घर पे पहुंच गई है। इतने में मुझे ये मेरी बहन ने कॉल किया कि मैं तो भाग गई हूँ और वो दूसरी जो है वो थाने में ही रह गई है ना। मैंने कहा किधर हो आप? कहती है कि बस मैं इस रोड पे हूँ, आप आओ। बस मैंने उसको ये गुलबार के एरिया से उठाया है, गुलबार के एरिया से उठाया। उसने उसको काफ़ी सर पे चोट लगी हुई थी और आंख भी दुखी हुई थी। गुलबार थाने पहुंचे? हाँ, मैं गुलबार थाने इसको लेके पहुंच गई। जब मैं गुलबार थाने जल्दी से पहुंच गई, बस इनको गुलबार थाने में मैंने उतारा है, ये गए हैं। इनके FIR पहले तो नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने रोजनामचा इनके लिए कर दिए। जब इनके लिए रोजनामचा कर लिए बस ये लोग, मैंने इनको कहा तुम लोग अंदर से ना निकलो बाहर, बस अंदर ही रहो क्योंकि बाहर खतरा है, ये लोग उधर इधर हो रहे हैं। इतने में मुझे इतला मिलती है कि जी पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंची हुई है आपके घर में। अब घर पे कोई मर्द नहीं था, कोई भी नहीं था और वो गेट तोड़ रहे थे। तकरीबन ये 15 मिनट 20 तक ये दरवाजे तोड़ बाड़ीपुरे और शनाखरी वाले थे। हाँ, मैंने कॉल की है लेकिन कॉल्स वगैरह भी पिक नहीं कर रहे थे पुलिस वाले। इन्होंने मुझे कॉल किया लेकिन मैं दोबारा कॉल कर रहा था, बस मुझे सिर्फ ये कहते हैं बस तराशा और बात नहीं कर रहे थे मेरे साथ। मैंने कहा मसला क्या, मैं आता हूँ। मैं जैसे उस रवाना होने लगूँ तो बस मुझे जो है मेरी की कॉल आई, ये मेरी बहन जो जिसने इंटरव्यू दिया इसकी कॉल आती है कि ये वाक़या हो गया, पुलिस वालों ने हमें खुद ही निकाला, हम नहीं निकल रहे थे। और उधर नहर के ये जो नायबा थी वो उस वक्त मरी नहीं थी या आपको खबर नहीं? अच्छा, वो आपके साथ? हाँ, वो नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी, वो ये इनके साथ मोबाइल में थी। अच्छा, हाँ, पुलिस के साथ मोबाइल में थी और मैं जो है गाड़ी में रवाना हो गया था। उसने फिर छोड़ा है बाहर, उसने गोली मारी कि नहीं? पुलिस वहाँ खड़े थे? नहीं, इनको पुलिस वाले ने मोबाइल में डाला और ले गए हैं वहाँ पे। ये दलजात नहर है ना, वहाँ पे ले गए हैं। बस वहाँ पे इन्होंने छोड़ दिए, वहाँ पे इन्होंने टैक्सी की है और हाँ, गुलबार वाली पुलिस ने, और उन्होंने इसके लिए एक रोजनामचा कर लिया था बस, और कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा, मुझे जब बहन ने कॉल की है कि यार हमें तो इस तरह इधर छोड़ दिए, तो मैंने कहा तुम निकली क्यों, किस वजह से निकली हो? कहती है बस पुलिस वालों ने हमें खुद ही मोबाइल में बिठा के इस जगह में छोड़ दिए। बस उधर से इन्होंने कहीं टैक्सी किया, घर की तरफ आ रहे थे और मैं भी घर की तरफ जा रहा था। तो बस वहाँ पे चौक में पुलिस खड़ी थी, रश था और बस वहाँ पे इसके साथ ये सब वाक़या हो गया। पुलिस वालों ने फिर पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, हाँ पुलिस वाले भी थे वहाँ पे। सही है। और उनके सामने ज़ुहैब लोगों ने दोबारा वहाँ पे ये मोबाइल में दोबारा लेकर गए थे वहाँ से, आपको पता नहीं है कि किस चीज़ में कि वो वहाँ पर अशनगरी तानी ले गए जहाँ पर उनको मारा गया? नहीं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। इसी दौरान मुझे कॉल आती है कि लाइबा को जो है वो वहाँ पे नहीं गोली नहीं मारी, मतलब लाइबा को जो, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो कौन थे उनके साथ? ये मोबाइल वाली जो है ना, इसने तो टैक्सी में उनको उतार दिया। अच्छा, हाँ, बस वहाँ से अशनगरी पुलिस वालों ने इनको ले गए वहाँ पर? हाँ, अशनगरी पुलिस वाले इनको ले गए वहाँ पे, मारपीट करके। वहाँ से ज़ुहैब लोग भी थे और ये बाइकों पे थे और कुछ ये वाइट कहते हैं कोई आल्टो गाड़ी थी इनके पास। हाँ, और लेकिन बाद में मेरी बहन ने सही से नहीं देखा क्योंकि ये छुप गई थी, जाके पीछे छुप गई थी। तो आपको कॉल आई है कि आपकी बहन को मार दिया गया है या मर गई है? नहीं, उस टाइम किसने आपको? मुझे ये मेरी बहन ने कॉल की है कि बस ये मेरी बहन जो है इसको ले गए हैं और सोनम को, दोनों को ले गए, बच्चों को भी ले गए मेरे से। उनसे भाग गई? हाँ, ये तो बस मैं वहाँ से अशनगरी की तरफ भागा दोबारा। मैंने कहा ये इसको कहाँ ले गए? थाने ले गए। मैं घर की तरफ नहीं गया, मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम इस तरह करो, घर जाओ, ये पुलिस को तुम घर की तरफ जाओ, मैं थाने की तरफ जाता हूँ। मैं थाने की तरफ क्यों, ये थाने में नहीं थे, मैं दोबारा घर आ गया हूँ। मैं जब दोबारा घर की तरफ आई हूँ, ये मैंने अपनी बहन को पिक किए और इतने में मुझे कॉल आती है कि जी इसको गोली मार दी। अच्छा, ये मुझे बताए कि आपको कैसे पता चला कि लाइबा को मार दिया गया है, गोली मार दी गई है, तो आपको किसने पूछा? अच्छा, जो एक बहन अशनगरी में रह गई थी उनके साथ ये फिर हमारे जो सिटी टाउन वाला घर था जिसमें ये बहन थी मेरी, तो उधर गए हैं ये लोग। वहाँ से इन्होंने जो है मारपीट करके सबको मारा भी है, बदमाशी भी की है। पुलिस वाले भी देख रहे थे तमाशा, पुलिस वाले घर में घुसे हुए थे, कमरों में बैठे हुए थे और कोई लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी। और इन लोगों ने सही उधर बदमाशी भी की है हमारे साथ। और जो एंटी थी वो लेडीज़ पुलिस अपना बनाया था कि जी मैं लेडीज़ पुलिस, अंदर घुस के हमारी लेडीज़ पे हाथ भी उठाया है और बहुत बेशर्मी की है वहाँ पर। फिर उसके बाद अपने साथ DVR भी ले गए हैं। और वो जो मेरी बहन जिसको
लेकर आए थे, उसके गोद में छोटा बच्चा था, उसी को वापस भी ले गए। कहते आप पे पर्चा है, 107 का पर्चा, आप वापस हमारे साथ जाओ। और घर में जब ये सोनम लोग लाइबा कोई भी बरामद नहीं हो, बस ये लोग निकल गए वहाँ से ये लोग। और इनको हम कह भी रहे थे कि वो गुलबार थाने में है, उस टाइम वो गुलबार थाने में, हम कह भी रहे हैं, FIR कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपनी बदमाशी की और वहाँ से निकल गए। और आपकी बहन उनके बहन हाँ। के साथ थी जब उनको गोली मारी गई? वो बहन को लेके दोबारा इशनगरी थाने चले गए। जब इशनगरी थाने चले गए, इतने में ही ये जो दूसरा वाक़या हुआ, इन लोगों ने भी, ये लाइबा और सोनम लोगों को लेके ज़ुहैब लोगों ने, ये लोग भी निकल गए थे। इनके साथ भी पुलिस थी, ये मेरी दूसरी बहन ने बताया कि इनके साथ भी पुलिस फिर थी। वहाँ पर गोली मारी? हाँ, तो मेरी जो पहली वाली बहन को ये पुलिस वाले ले गए, 2 मोबाइलें थी, एक में ये ले गए और एक कोई और आल्टो गाड़ी थी। बस मेरी बहन तो अंदर थी, तो मेरी बहन को आवाज़ें आई थाने से कि बाहर गोलियां चली है। मेरी बहन ने कॉल किया कि जी बाहर आवाज़ आई है गोलियों की, और बस वो हैबत में बाहर निकली, तो मुझे कहती है कि बस लोग जमा है, फिर कहती है मार दिए, किसी को मार दिए, फिर कहती है लाइबा को मार दिए, बस ऐसे मुझे पता चला। ګرانو کتونکو تاسو د افسوسناک واقعې په باره کې دا کوم چې رور او خور تاسو دا خبرې واورېدلې په دې باره کې چې دا کومه واقعه د CCP صاحب ته خاص کر چې کوم دا والد صاحب دی هغه وایي چې زما CCP صاحب ته دا خواست دی چې ملزمان خو ونیول شو دغه خو به کېږي خو چې کوم پولیس فورس دی کوم چې غفلت شوی دی کوم چې د هغې د وجې یو زندګي ضایع شوله